students, in the previous video we discussed types of functions, one function and onto function, and a function which is one and onto is bijective. So we'll be doing questions from NCERT exercise 1.2. First question is, show that the function f from r star to r star defined as f of x is 1 by x is 1 and onto, where r star is set of all non-zero real numbers. R star में non-zero real numbers है. Is the result true if the domain r star is replaced by n? मतलब कि function n to r star हो जाए with codomain being same as r star. तो इसके दो पार्ट हैं. First part will discuss f is a function from r star to r star. If you remember its graph, it is like this. So its domain is set of all real number except 0. Range is also set of all real number except 0. No horizontal line is cutting the graph at more than 1 point, so it is 1. And range is set of all real numbers except 0, which is same as codomain. So it is onto also. But as I discussed earlier, we have to prove it not from graph but by definition. So let x1 and x2 be two non-zero real number, means belongs to r star, such that f of x1 is equal to f of x2. So this will imply 1 by x1 is equal to 1 by x2. So taking reciprocal, we get, or you can cross multiply, x1 is equal to x2. Therefore, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 for all x1 and x2 in set of real number other than 0, means r star. Therefore, f is 1 और we call it injective. तो यहाँ पे f 1 और injective function हो गया. Let us prove it is onto. To prove onto, we take y in set B codomain. Here it is also r star. So let y belongs to r star. Then we try to solve fx equal to y and we find x in terms of y. तो हम fx equal to y लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे. तो fx हमारे पास है 1 by x equal to y. यहां से हम x निकाल लेंगे y की टर्म में, तो x आ गया 1 by y. और ये x हम शो करेंगे कि हमारा डोमेन में आ रहा है. तो हमारा y as y is not equal to 0, as y belongs to r star. Therefore, y is non-zero real number. So this implies x equal to 1 by y is also a non-zero real number. क्योंकि y non-zero है तो 1 by y real number होगा और वो non-zero real number होगा. Therefore, for each x, for each y in codomain r star, there is sum x equal to 1 by y in domain r star. तो कोडोमेन के y के लिए अगर डोमेन में एक x मिल जाए such that f of x is y, therefore f is
onto, as f is 1 1 and onto means surjective, therefore f is bijective. अब हमें क्या करना है सेकेंड पार्ट में, सेम फंक्शन फ्रॉम n टू r स्टार मीन्स n टू नॉन जीरो रियल नंबर हमें चेक करना है 1 1 होगा या नहीं और ऑन टू होगा या नहीं. So we have now f is a function from n to r star defined as f of x equal to 1 by x. Same function but different domain. तो 1 1 के लिए तो वही आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, लेट x1 x2 are two natural numbers such that f of x1 is equal to f of x2. So this will mean f of x1 हो जाएगा 1 by x1 is equal to 1 by x2. So this implies cross multiplying or taking reciprocal, x1 is equal to x2. Thus we are getting f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 for all x1. This is the symbol for all x1 and x2 in n. Therefore f is 1 1. अब देखते हैं ऑन टू होगा कि नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो हम कुछ ऐसा y लेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू 2 belongs to R star codomain and let us try to solve f of x equal to y or 1 by x equal to 2. हमें यहाँ पे कोई भी y जो लेंगे उसके लिए एक x ढूंढना पड़ेगा such that f of x is y, और अगर एक भी y के लिए हम x ना ढूंढ पाए तो वो नॉट ऑन टू हो जाएगा. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 by 2. अब ये r स्टार में तो है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है, तो जब भी डिस्प्रूव करना होता है तो एक काउंटर एग्जांपल लेना पड़ता है. तो देयरफॉर वी कैन राइट फॉर y इक्वल टू 2 इन r स्टार मीन्स कोडोमेन. हमने कोडोमेन में एक ऐसा y ढूंढ लिया जो कि 2 है. देयर इज नो x तो है लेकिन n में नहीं है, डोमेन में नहीं. देयर इज नो x belongs to set n which is domain of this function such that f of x is y. Therefore f is not onto. तो हम y इक्वल टू 2 के लिए कोडोमेन में एक x नहीं ढूंढ पाए डोमेन में such that f of x y हो जाए, इसलिए फंक्शन नॉट onto होगा. तो कई बार फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला वही होगा लेकिन डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट कोडोमेन में फंक्शन 1 1 और onto डिफरेंटली बिहेव करेगा. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो इसका फर्स्ट पार्ट है f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर. तो लेट x1 x2 belongs to domain n such that f of x1 is equal to f of x2. हमने दो पॉइंट लिए x1 x2 डोमेन में such that f of x1 is equal to x2. This implies x1 square is equal to x2 square. और आप यहां से सीधा x1 इक्वल टू x2 नहीं कह सकते, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0. तो फैक्टराइज कर दो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2. अब यहां से मेरे पास दो ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं. दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2
सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एज x1 एंड x2 बोथ आर नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन में है। तो डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देयरफॉर x1 प्लस x2 जीरो नहीं होगा। तो जब प्रोडक्ट जीरो है और ये फैक्टर जीरो नहीं है तो ये फैक्टर ही जीरो होगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। So for fx1 is equal to fx2, we are getting x1 equal to x2. Therefore, f is 1, 1. अब ऑन टू के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो ऑन टू होगा, नहीं है तो नहीं होगा। या फॉर ईच y in set B means codomain, there should be some x in set A means domain such that f of x is y. तो हम यहाँ जो आसान लगे वो करें। तो रेंज निकालना आसान है। रेंज होती है y की वैल्यू यानी कि fx की वैल्यू, डोमेन के पॉइंट्स। तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपकी रेंज आएगी, विच इज नॉट इक्वल टू सेट n। ये सेट n के इक्वल नहीं है, मीन्स कोडोमेन के इक्वल नहीं है। Therefore, f is not onto। अब इसका सेकंड पार्ट भी कुछ कुछ इसी तरीके का होगा। सेकंड पार्ट है f is a function from z to z defined as f of z f of x equal to x square। तो ये 1, 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब z आ गया तो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों नंबर होंगे। तो f of -1 is -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया f of -1 इज इक्वल टू f of 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो fx1 इक्वल टू fx2 आ गया, लेकिन x1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू x2 आया। f of x1 इक्वल टू f of x2 से x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए 1, 1 के लिए। तो therefore f is not 1, 1 मीन्स नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि इसने वर्ड पूछा इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। अब ये भी रेंज निकालना आसान है। यहाँ पे इंटीजर्स 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, इंटीजर माइनस और 1 का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लाइक दैट। तो दिस इज रेंज विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? z, कोडोमेन z। Therefore f is not 1, 1, not onto और subjective। तो ये ना तो onto है और ना 1, 1 है, मीन्स नॉट इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अब इसका थर्ड पार्ट था f is a function from R to R defined as f of x equal to x square। तो ये भी 1, 1 में तो वही एग्जांपल चल जाएगा, f of -1, क्योंकि रियल नंबर में भी -1 होता है, -1 का स्क्वायर इज 1, f of 1 इज 1 का स्क्वायर इज 1। ये हमने कंसेप्ट समझाते समय भी लिया था। Here f of -1 is equal to f of 1, but -1 is not equal to 1, therefore f is not 1, 1 means इंजेक्टिव। और यहां भी रेंज आसानी से निकल जाएगी। एज fx क्या x स्क्वायर है, एज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R मीन्स डोमेन। तो डोमेन के सभी पॉइंट पे x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। x स्क्वायर क्या है? fx, और fx की वैल्यूज होती है रेंज। देयरफॉर रेंज इज 0 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी।
विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे R है, विच इज नॉट इक्वल टू R मीन्स कोडोमेन। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल ना हो तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव। तो ये भी नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है। अब इसके थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है f is the function from n to n defined as f of x equal to x cube। और चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो है 1 1 हो जाते हैं अगर उसमें और कोई टर्म मिक्स नहीं है, x क्यूब प्लस 5 लाइक दैट। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट, हमने दो पॉइंट्स लिए डोमेन में, सच दैट f of x1 is equal to f of x2। दिस implies x1 क्यूब is equal to x2 क्यूब, क्योंकि हमारे रियल फंक्शंस होते हैं तो जब क्यूब्स बराबर होती है तो उनके नंबर भी बराबर होते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं आता। दिस इंप्लाइज x1 is equal to x2, therefore f is 1 1। अब रेंज के लिए यहां भी हम ऑन टू के लिए यहां भी हम रेंज निकाल लेते हैं। f की वैल्यू हमें डोमेन के पॉइंट पे निकालनी है। डोमेन के पॉइंट्स है 1 2 3 एटसेट्रा, और fx इनका क्यूब है तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एटसेट्रा, which is not equal to n, which is कोडोमेन। तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है ये, तो therefore f is not surjective means not onto, और ये 1 1 को आप लिख सकते हैं not 1 1 means not injective, sorry f is 1 1 means injective। फोर्थ पार्ट में, in fourth part this is replaced by z। f is a function from z to z defined as f of x equal to x cube। तो 1 1 तो ऐसे ही हो जाएगा। Let x1 x2 belongs to domain z such that f of x1 is equal to f of x2। This implies x1 cube is equal to x2 cube। तो इससे x1 equal to x2 आ जाएगा कोई भी डोमेन हो। तो therefore f is injective means 1 1। रेंज निकाल लेते हैं यहां पे भी हम, नॉट ऑन टू या ऑन टू शो करने के लिए। z में इंटीजर्स हैं तो इंटीजर 0 का क्यूब 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एटसेट्रा। और फिर माइनस में होंगे इधर, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27 एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये z के इक्वल तो नहीं है क्योंकि z में ज्यादा इंटीजर है, इसमें मिसिंग है। सो नॉट इक्वल टू z विच इज कोडोमेन। तो रेंज हेयर इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर f इज नॉट surjective means onto। Question number 3. Prove that greatest integer function f from R to R given by f of x is equal to greatest integer x is neither 1 1 nor onto, where this symbol represents the greatest integer less than or equal to x। इसका हमने ग्राफ भी बनाया था तो वो भी रेफर कर सकते हैं आप। f is a function from R to R defined as f of x equal to greatest integer x। तो आपको ग्राफ से भी पता होगा और वैसे भी पता है। आप कोई दो वैल्यूज ले लीजिए रियल नंबर में, f of 2.3 is greatest integer of 2.3
is 2. f of 2.5 is greatest integer of 2.5, which is 2. So here f of 2.3 is same as f of 2.5, but 2.3 is not equal to 2.5. तो fx1 is equal to fx2 आ गया, but x1 is not equal to x2, therefore f is not 1 1. अब on 2 के लिए चेक करेंगे. यहां हमें डायरेक्ट पता है रेंज इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. अगर ये ऑल इंटीजर्स तक होता तो ये ऑन 2 हो जाता, लेकिन ये हमें R2R दिया हुआ है. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन R, देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2. और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, नॉट ऑन 2 के लिए आपको पता है रेंज Z आएगी, तो कोई ऐसा नंबर ले लो जो Z में नहीं आ रहा हो. तो लेट y equal to half is in codomain R. Then there is, आपको पता है कि किस y क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हाफ नहीं हो सकता. देन देर इज नो x इन डोमेन R. हमने y लिया कोडोमेन R में, उसके लिए कोई भी x नहीं आएगा डोमेन में, सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज हाफ. क्योंकि किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर हाफ नहीं हो सकता. और fx ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है fx, और हाफ क्या है y. तो y इक्वल टू 1/2 इन R मीन्स कोडोमेन. देयर इज नो x इन डोमेन such that f of x is y. तो therefore f is not on 2. तो रेंज वाला कंसेप्ट भी क्लियर है, और ऐसे भी कर सकते हैं नॉट ऑन 2. क्वेश्चन नंबर 4. Show that the modulus function fx is mod x is neither 1 1 nor on 2. ग्राफ से भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन प्रूफ आप ग्राफिकली नहीं करेंगे, प्रूफ आप काउंटर एग्जाम्पल या फॉर ऑल एक्स करेंगे. तो हमें यहाँ पे पता है कि -1 और +1 पे वैल्यू सेम आएगी, और क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर है, -1 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो मैंने दो रियल नंबर लिए -1 और 1. तो f of -1 इज mod of -1 is 1, and f of 1 means mod of 1 is 1. ये भी 1 हो गया. तो f of -1 is f of 1, but -1 is not equal to 1. f of x1 is equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Therefore f is not on 2. और आप रेंज से भी कर सकते हैं. रेंज इसकी 0 to infinity है, which is not equal to codomain. The range of modulus function is 0 to infinity, which is not equal to our codomain. Therefore f is not on 2. और आप y वाले मेथड से भी कर सकते हैं. आपको पता है 0 to infinity है, तो आप कोई ऐसा नंबर ले लें जो इस रेंज से बाहर हो, -2. तो हमने y लिया -2 इन R विच इज कोडोमेन. कोडोमेन R है, तो हमने कोडोमेन में कोई y लिया -2, देन देयर इज नो x इन डोमेन. डोमेन में कोई x नहीं है, सच दैट mod x -2 हो जाए. mod x -2 तो हो ही नहीं सकता. दैट इज mod x क्या है f of x, और -2 क्या है y.
तो हमने अगर y-2 लिया कोडोमेन में तो कोई x नहीं ढूंढ पाए डोमेन में कि fx y आ जाए। अब आप कहोगे मैं 1 लेता तो मैं mod x इक्वल टू 1 सॉल्व कर लेता। जब आपको प्रूव करना है तो यू हैव टू प्रूव फॉर ऑल वैल्यूज। तो ऑल y के लिए यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड x। सम y's के लिए तो फाइंड कर पाएंगे, पॉजिटिव y के लिए और 0 के लिए। नेगेटिव y के लिए यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड एनी x सच दैट mod x इज y और fx इज y। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। Question number 5. Show that signum function f from R to R given by f of x equal to 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0 is neither 1, 1 nor on 2. आपको ये ऐसे भी दिया हो सकता है mod x by x if x is not 0, 0 if x is 0. तो इसका भी अगर आपको ग्राफ याद हो, 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी और पॉजिटिव x पे वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैं 1 यूनिट ले लेता हूं, लेकिन 0 पे एम्प्टी सर्किल बनेगा। नेगेटिव पे -1 हो जाएगी नेगेटिव x पे, इस पॉइंट को छोड़ के। तो यहां भी इजीली पता लग रहा है ग्राफ से कि 1, 1 नहीं है। ओरिजेंटल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, खुद ही ये ओरिजेंटल लाइन का ग्राफ है। तो एफ ऑफ, अब जितने भी पॉजिटिव x है उन सब का fx 1 है। तो अगर मैं इसे रे डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूं, सेट R टू R मेरा फंक्शन है, -1, 1, 2, 3 कुछ मैंने नंबर लिए। -1 तो -1 से मैच होगा, 1 1 से मैच होगा, 2 भी 1 से मैच होगा, 3 भी 1 से मैच होगा, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव x है सबका सिग्नम जो फंक्शन जो है 1 है और नेगेटिव का -1 है। तो f ऑफ 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 2 भी 1 क्योंकि पॉजिटिव x का fx 1 है। तो here f of 1 is equal to f of 2, but 1 is not equal to 2. तो जब भी fx1 equal to fx2 आ जाए but x1 is not equal to s2 आए तो फंक्शन इज नॉट 1, 1. Therefore f is not 1, 1 और इंजेक्टिव, दोनों वर्ड याद होने चाहिए। ऑन टू के लिए क्या करना होगा, यहाँ तो रेंज बहुत ही स्पष्ट है इसलिए और कोई चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रेंज fx की यानी कि y की वैल्यू होती है, y में 3 वैल्यूज हैं, जितने भी नेगेटिव x है सबका fx -1 है, 0 का 0 है, पॉजिटिव x का fx 1 है। तो रेंज में सिर्फ ये 3 पॉइंट आएंगे और हम देख पा रहे हैं कि रेंज जो है कोडोमेन से अलग है। नॉट इक्वल टू R मीन्स कोडोमेन। सो व्हेनेवर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन then f is not on to or surjective। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल बी कवरिंग क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड।